اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ گئے جاری پانی پر۔ جاری پانی میں تین باتیں ہوتی ہیں، اگر ایک بات ان تین میں سے نہ ہوئی نا تو وہ پانی جاری نہیں ہوگا۔ تین باتیں ہونا ضروری ہے تب جا کے جاری بنے گا۔ ایک یہ کہ اس کا قدرتی ذخیرہ ہو، جیسے گلیشیئر ہے نا، برف ہی برف ہے، وہ ساری پگھل کے دریا بن کے آ رہی ہے تو ذخیرہ قدرتی ہے نا گلیشیئر۔ یا زمین سے ابل رہا ہے اور پھر بہہ رہا ہے، تو یہ زمین میں موجود بھی تو ایک قدرتی ذخیرہ ہے نا۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس کا قدرتی ذخیرہ ہو۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ زمین پہ بہہ رہا ہو، اگر پیپ میں چل رہا ہے تو جاری نہیں بنے گا، زمین پہ بہہ رہا ہے۔ دوسری بات، اب اگر پائپ لائن کے ذریعے سے پانی آ رہا ہے، وہ زمین سے تو نکال رہے ہیں لیکن پیپوں میں چل رہا ہے، یہ جاری نہیں ہے، خود زمین پہ بہنے والا ہو۔ کور ہوگا، وہ کور کے احکام آئیں گے۔ کور اور جاری میں ایک مسئلے میں جا کر فرق ہو جاتا ہے۔ چھوٹے پیشاب سے ہاتھ نجس ہے تو کور کو احتیاط واجب ہے کہ 2 دفعہ دھوئیں، کور سے دھوئیں گے ہاتھ کو تو 2 دفعہ، جاری میں 1 دفعہ کافی ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے نا، لہذا جاری کو پہچاننا پڑے گا۔ جاری وہ ہوتا ہے جس کا قدرتی ذخیرہ ہو، ایک زمین پہ بہنے والا ہو، 2 اور زمین پہ جو اس کا بہنا ہے وہ 1-2 دن کے لیے نہ ہو، کم از کم ایک موسم ہو، موسم سرما، موسم گرما، یہ جو ہوتا ہے ایک موسم، یعنی 2-2.5 مہینے وہ بہتر ہے۔ اب جو زمین سے تو نکل رہا ہے پیٹر، وہ جو موٹر لگی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے زمین سے نکل کر بہہ رہا ہے، لیکن کتنی دیر بہتا ہے؟ موٹر 1 گھنٹہ چلتی ہے، 1 دن چل جائے گی، پیٹر جو ہے وہ 1 دن چلے گا، کھالوں میں پانی بہہ رہا ہے، 2 دن چلے گا پھر بند۔ ہمیں چاہیے 2-2.5 مہینے، یعنی لمبا عرصہ چلے لگاتار، تو لہذا لگاتار بنانا ہے تو یہ پیٹر والا بھی جاری میں نہیں جائے گا، یہ کور میں جائے گا۔ یہ بور لگے ہوئے ہیں زمینوں میں، وہ بہہ تو زمین پہ رہا ہے لیکن اور زمین اور قدرتی ذخیرے سے بھی اس کا رابطہ ہے۔ اس کی تیسری شرط جو تھی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2-2.5 مہینے لگاتار تو نہیں چل رہا۔ سمجھ آ گئی؟ تو جاری پانی میں یہ 3 باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے کتنے ہی طالب علم گئے، وہ پیپوں والے کو بھی جاری کہہ رہے تھے، تو پیپوں والا کیسے جاری ہے؟ وہ زمین پہ تو نہیں ہے، وہ تو پیپ میں چل رہا ہے، وہ کور میں جاتا ہے۔ اچھا، جاری پانی وہ ہوتا ہے نمبر 1 جس کا ایک قدرتی منبع ہو، یعنی قدرتی ذخیرہ ہو جہاں سے وہ آ رہا ہو۔ منبع کہتے ہیں جہاں سے نکلنے کی جگہ، پھوٹنے کی جگہ، قدرتی منبع ہو، ایک بات یہ۔ دوسری بات، جو بہہ رہا ہو، اگر ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، زمین سے ابل کے ایک مقام پہ ٹھہر گیا، اب اور آپ بالٹی بھریں گے تو نیچے سے اور بالٹی آ جائے گی، اگر اس میں سے 1000 لیٹر نکال لیں گے تو نیچے سے اور 1000 لیٹر آ جائے گا، لیکن وہ بہہ نہیں رہا، ایک اسی گڑھے میں ٹھہر جاتا ہے، اس میں پریشر نہیں ہے، تو یہ بھی جاری نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہہ نہیں رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں زمین پہ بہے، چاہے اسے کسی مصنوعی طریقے سے بہایا جا رہا ہو، زمین سے نکل رہا ہے پیٹر کے ساتھ اور پھر زمین پہ بہہ رہا ہے، تو یہ زمین پہ بہنا ضروری ہے۔ یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا، وہ بہہ رہا ہو، ادھر لکھنا تھا وہ زمین پہ بہہ رہا ہو، پیپوں میں نہ بہہ رہا ہو، زمین میں بہہ رہا ہو، جو زمین پر بہہ رہا ہو، یہاں لفظ زمین بڑھانا چاہیے، بہہ رہا ہو۔ یہ 2 باتیں۔ تیسری، اس میں کسی حد تک ہی صحیح تسلسل ہو، 2-2.5 مہینے تسلسل کے ساتھ بہہ رہا، سارا سال نہیں بہتا لیکن ایک حد تک تو بہہ رہا ہے نا، تسلسل ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی قدرتی ذخیرے سے متصل ہو۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ اردو میں انہوں نے مزے کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے پہاڑوں پہ ہوتے ہیں چشمہ بہہ رہا ہے، پورے 3 مہینے بہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے پورا سارا سال بہہ رہا ہو، بہہ بھی زمین پہ رہا ہے، پہاڑ بھی تو زمین کا حصہ ہے نا، پیپ تو نہیں ہے نا۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آتا ہے نا پہاڑ کے آخر میں، تو نیچے وہ آبشار کی طرح بنتا ہے اور قطرے قطرے کر کے آ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ قطرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، لیکن اس طرح دھار نہیں ہوتی جیسے یہ پیپ سے نکلتا ہے تو دھار ہوتی ہے، جیسے نلکے کے آگے سے نکلتا ہے تو دھار ہوتی ہے، وہ اونچائی سے جو گرتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو ٹوٹ رہا ہے
और फिर नीचे जाकर फिर उसी तरह बह रहा है। ये जो दरमियान में टूटा है ये इसके जारी होने को ख़त्म कर देगा या नहीं? कहा ये कुदरती तौर पे टूटना और जमा हो जाना ये इसके जारी होने को ख़त्म नहीं करेगा, ये जारी रहेगा। समझ आ गई? ये जारी रहेगा। हाँ ऐसे हुआ है कि आपने आगे दीवार दे दिया और पानी अब बह ही नहीं रहा, एक जगह में ठहरा हुआ है, तो फिर वो जारी नहीं। ये तो कुदरती तौर पर एक थोड़ा सा गिरते वक्त टूटा है, फिर नीचे फिर इकट्ठा होकर बह रहा है, तो ये जारी है। अच्छा, और ये जरूरी नहीं है वो पहाड़ से गिरते वक्त वो धार में ही रहे, ये जरूरी नहीं है कि वो पानी कुदरती जखीरे से मुत्तसिल हो धार की शक्ल में, ये जरूरी नहीं है। लिहाजा अगर कुदरती तरीके से टुकड़े टुकड़े हुआ है, हमने नहीं किया है, लिहाजा अगर कुदरती तरीके से वो पानी के जखीरे से जुदा हो कुदरती तौर पर, जैसे चल रहे हैं पहाड़ों पे चश्मे, मसलन अगर पानी ऊपर से कतरों की सूरत में टपक रहा हो और नीचे गिरकर दोबारा बहने की सूरत में हो जाए, ये लफ्ज़ लिखना चाहिए ना, बहने की सूरत में उसे जारी ही माना जाएगा। ठीक है, ये कतरे बने हैं ना कुदरती तौर पे, फिर ऊपर से बह रहा था पहाड़ से, फिर एक जगह पर वो टुकड़े टुकड़े होकर फिर नीचे गिरा है और फिर नीचे बहने लगे, तो ये सारा जारी है। ये टुकड़े होना उसको नुकसान नहीं देगा, जारी होने को ख़त्म नहीं करेगा। शायद समझ आ रही है? अच्छा, हाँ अगर कोई चीज़ पानी के ज़ख़ीरे से इत्तिसाल में रुकावट बन जाए, हमने आगे दीवार दे दी है, अब तो इत्तिसाल टूट गया है ना, अब वो एक डैम भर गया है, डैम के दरवाजे भी हमने नहीं खोले, वो भरा हुआ खड़ा हुआ है, तो अब ये जो डैम भरा हुआ है ना, जमीन पे तो नहीं बह रहा ना, ये कुर है, ये जारी है ही नहीं। जारी होने के लिए बहना जरूरी है, तो ये कुर के अहकाम चले जाएंगे। पेशाब से नजासात को अब 2 गोते उसमें दो दफा धोना होगा, एक दफा काफी नहीं होगा। क्यों? हमने आगे दीवार दे दी और उसका बहाव रोक दिया है। समझ आई? हाँ, अगर कोई चीज पानी के जखीरे से इत्तिसाल में रुकावट बन जाए, मसलन पानी के बहाव या उबाल में रुकावट बने, ये डैम की दीवार आगे जो बनी है ना, ये बहाव के आगे रुकावट बन गई है। एक दफा है कि पानी बह रहा था, पीछे से हमने कंक्रीट के साथ वो सुराख ही बंद कर दिया जहां से जमीन से वो निकाल रहा था, तो अब पीछे से सिलसिला खत्म। आगे जो बह रहा है हजारों लीटर है, वो बह रहा है तो वो कुर शुमार होगा, वो जारी नहीं है क्योंकि पीछे मुनक़ते हो गया है, टूट गया है। अच्छा, तो वो उबाल में रुकावट बने या जखीरे से इत्तिसाल ही तोड़ दे, वो कंक्रीट से भर दिया आपने, तो बाकी मानदा पानी को जारी नहीं माना जाएगा, चाहे वो बह भी रहा हो तब भी ये जारी नहीं है क्योंकि कुदरती जखीरे से इत्तिसाल टूट गया है। तो हमारी सारी शराइत सामने रखें, कुदरती जखीरे से इत्तिसाल हो, जमीन पे बह रहा हो और मुसलसल 2.5 महीने 3 महीने वो बहता रहे, ये तीनों बातें होंगी तो जारी बनेगा। हाँ, तो ठहर गया है, हम चाहते हैं बह रहा हो। समंदर में तो सारा ही समंदर है, दरिया उसमें कुछ नहीं है, समंदर कुर में आएगा क्योंकि वो बहने वाला नहीं है, एक जगह में ठहरा होता है। समंदर कभी जाना तो वो बहता नहीं है, समंदर दरिया बहते हैं, समंदर तो ठहरा हुआ है खामोश, तो लहरें हों लेकिन वो बहना नहीं होता। वो जैसे भी लहर बनती है, मद्दोजज़र जो होते हैं चांद की वजह से बनती है ना, चांद की कशे से शक्ल जो है ना वो खींचती है, हम भारी हमें नहीं खींच सकती, पानी हल्का है तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, फिर जमीन की उसको खींचती है तो वो ऐसे ऐसे होता है, इधर से भी कशे से शक्ल है उधर से भी है, तो वो जो है ना लहरें बनती हैं। तो ये लहरें जो बनती हैं ये बहना नहीं है, एक जगह ठहर, जैसे अभी पानी ठहरा उसमें आप पत्थर फेंकें तो वो छोटी छोटी लहरें तो बनेंगी, ये बहना तो नहीं है तो लहरें बनेंगी, पानी तो एक ही जगह पे है। समंदर वाला कुर है, समंदर वाला जारी नहीं है। जारी देखना है ना तो ये दरिया से आ रहा है, उससे निकलने वाली नहरें वो भी तो लंबा अरसा चलती रहती हैं, उससे निकलने वाले खाले नाले, ये जारी है। आगे 27 मसला, जारी पानी अगरचे कुर से कम ही क्यों ना हो, निजासत के आ मिलने से तब तक नजस नहीं होता जब तक उसकी निजासत की वजह से रंग बुझाए का तब्दील ना हो जाए। अब जो जारी था ना, चश्मा बह रहा था,
ہم نے پانی کو تھوڑا سا اور راستہ دے دیا. وہ اس راستے سے بہ رہا تھا نا, دیکھو یہ ایسے, ہم نے ایک اور راستہ کھود دیا ہے. اب ادھر بھی آ رہا ہے اور ادھر بھی جا رہا ہے. ادھر جو جا رہا ہے ابھی نیا نیا شروع ہوا ہے, لیکن زمین پہ بہ رہا ہے, پیچھے سے تو متصل ہے. وہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے, کور سے کم ہے, لیکن بہ رہا ہے نا, وہ بھی جاری ہے, کیونکہ وہ اب مسلسل بہتا رہے گا, 3 مہینے بہتا رہے گا, تو وہ بھی جاری ہے. اب جاری جو ہے کور سے کم ہے, تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے, تو یہ جاری کے احکام آ جائیں گے. یعنی یہ نجس نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ بوزے کا تبدیل نہ ہو, چاہے کور سے کم بھی آئے, کیونکہ جاری ہے نا. قلیل جو ہے وہ فوراً ملاقات سے نجس ہو جاتا ہے, رنگ بوزے کا تبدیل نہ ہو تو بھی نجس ہو جاتا ہے. اس پہ قلیل کا حکم نہیں لگے گا, کیونکہ یہ چل رہا ہے نا, پیچھے سے متصل ہے. اس کا وہ مدت جو 2.5 مہینے کی ہاں پوری ہوگی پھر جاری نہ شروع سے وہ کیونکہ وہ اصل میں وہ ایسے ہے نا, ایسے پیچھے سے سارا سال وہ بہتا ہے ایسے لائن میں. اب ہم نے کیا کیا, ادھر سے تھوڑا راستہ بنایا ہے, وہ ایسے گھوم کے پھر اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ جب تک چل رہا ہے اس کے لیے 2.5 مہینے ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ہے تو وہی والا نا. جیسے دریا سے نہر آ رہی ہے, نہر کے آگے جو کھالا تھا اس کو آپ نے بند کر دیا ہے, بند کر دیا ہے. کال چلائیں گے, جب چلائیں گے وہ جاری شمار ہوگا, کیونکہ وہ سارا تو وہ ایک ہی ہے نا. وہ پیچھے وہ کتنے سال سے چل رہا ہے, تو اب ہم نے راستے سے وہ ادھر پھیر دیا ہے. ہاں اچھا, آگے مسئلہ 28. ایک دفعہ ہے کہ جاری پانی تھا جہاں سے آ رہا ہے, دیکھو ادھر ہم نے اس میں خون 10 لیٹر خون جمع تھا ہمارے پاس, ہم نے اس میں ڈال دیا, جس کی وجہ سے اس کا یہ کنارہ جو ہے نا, مغربی کنارہ نہر کا, وہ سرخ ہو گیا ہے. پیچھے صاف ہے پانی, آگے بھی صاف ہے, یہی کنارے کے ساتھ ساتھ سرخ ہے. اس کنارے کے ساتھ بھی پانی اپنی اصلی حالت پہ ہے. یہی جو جگہ سرخ ہو گئی ہے, جب تک یہ سرخ ہے رنگ اس کا تبدیل ہے, وہ جگہ نجس ہے. اب چونکہ پانی کے ساتھ وہ چل رہا ہے, تو چلتے چلتے ابھی اس کی وہ سرخی ختم ہو جائے گی, جیسے ختم ہوگی پھر پاک ہو جائے گا, کیونکہ وہ ملاقات تو ہو رہی ہے نا. پانی کو پاک کرنا ہے تو کور ڈالیں. ایک اور طریقہ ہے کہ پانی کو پاک کرنا ہے تو جاری پانی ڈال دیں, تو یہ جاری بھی پاک کرتا ہے پانی کو, اور کور بھی پاک. اگر نجاست جاری پانی سے آ ملے تو اس کی اتنی مقدار جس کی بو, رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے, وہ مقدار نجس ہے. یہ 100 لیٹر جو ادھر اس کنارے کے ساتھ تھا, اسی میں ہم نے پانی خون ڈالا ہے, تو وہ رنگ تبدیل ہوا ہے, وہ نجس ہے. البتہ اس پانی کا وہ حصہ جو چشمے سے متصل ہو اور پیچھے سے آ رہا ہے, تو وہ پاک ہے. پیچھے سے جو آ رہا ہے اس کا تو رنگ بوزائے کا تبدیل نہیں ہوا نا, وہ پاک ہے. خواہ اس کی مقدار کور سے کم ہی کیوں نہ ہو, وہ جاری ہے, پیچھے سے چشمے سے آ رہا ہے, وہ پاک ہے. ندی کی دوسری طرف کا پانی, اچھا اب ایسے ہوا, ادھر ایک اور صورت دیکھیں. یہ ندی آ رہی ہے, یہ میں بنا رہا ہوں, اس کے درمیان میں آپ نے ڈال دیا ہے 100 لیٹر خون. یہ ندی کا ایک لمبا علاقہ جو ہے وہ رنگ اس کا تبدیل ہو گیا ہے, ساری ندی کا. تو پیچھے سے تو چشمے سے متصل ہے نا, گلیشیئر سے متصل ہے, وہ تو سارا پاک ہے, وہ تو مسئلہ کور سے کم ہو وہ پاک ہے, پیچھے متصل ہے. درمیان میں آ گیا ہے خون والا علاقہ 100 میٹر, یہ سارا خون کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. اب آگے جو جا رہی ہے اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا, لیکن اس آگے والی کا پیچھے چشمے سے رابطہ ٹوٹ گیا, کیونکہ درمیان میں تو نجاست آ گئی ہے نا. تو آگے جو ہے وہ کتنا ہے آپ اس کو دیکھیں. وہ چشمے سے جب ٹوٹ جائے تو جاری کے احکام جاری نہیں ہوتے نا, جاری تو ہوتا ہے پیچھے جو قدرتی ذخیرہ اس سے رابطہ ہو. اس کا ٹوٹ گیا. آگے اگر کور ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا, کیونکہ کور کا رنگ بوزائے کا جب تک تبدیل نہ ہو نجس نہیں ہوتا. اس کا بھی رنگ بوزائے کا تبدیل نہیں ہوا ہے. اگر ہے کور تو پھر تو ہے پاک. اگر وہ قلیل, وہ چونکہ اس سے متصل ہے درمیان میں جو نجس جگہ ہے, تو لہذا آگے والا جو ہے وہ نجس شمار ہوگا, کیونکہ وہ قلیل ہے. سمجھ آئی مسئلے کی؟ نقشہ بنانا کاپی پہ, پیچھے سے آ رہا ہے چشمے سے, درمیان میں ہم نے 1000 لیٹر خون ڈال دیا ہے, جس کی وجہ سے ایک
किलोमीटर मसलन ये सारा तब्दील हो गया है, तो उस किलोमीटर से पहले वाला तो चश्मे से मुत्तसिल है, वो तो है पाक जारी जो है, ये भी बहता जा रहा है लेकिन रंग उसका वैसे का वैसे है। अब जो आगे जहाँ रंग खत्म हो गया है, सेट हो गया है पानी, उसके आगे भी तो बह रहा है, उसको देखें, वो अगर कुर है तो कुर का हुक्म होगा, अगर कलील है तो कलील का हुक्म होगा। जारी का नहीं हो सकता क्योंकि दरमियान में सिलसिला उसका मुनक़ते हो गया, दरमियान में तो निजासत आ गई है। समझ आ गई? यही बात है। अच्छा, दरमियान में निजासत आ गई। नदी की दूसरी तरफ का पानी अगर एक कुर जितना हो, वो जो आगे जा रहा है चश्मे वाली तरफ ना, दूसरी तरफ अगर कुर जितना हो जाए, उस पानी के जरिए जिसमें बू रंग या जायके की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, चश्मे की तरफ वाले पानी से मिला हुआ हो तो पाक है। अगर आगे वाला है कुर तो उसमें तो रंग बुझाई का तब्दील नहीं हुआ, वो पाक है। और अगर है कुर से कम लेकिन एक और रास्ते से चश्मे से मिला हुआ हो तो फिर भी पाक है, अगर कोई और रास्ता हो। अब ये नहर में तो दरमियान में तो निजासत आ गई, एक और खाला नहर हो जो फिर इधर आगे मिल रही है और फिर आगे वाला उस चश्मे से मुत्तसिल है उस जरिए से, तो भी फिर जारी शुमार होने लग जाएगा और उसका वो पाक होगा। और अगर ना कुर हो आगे वाला और ना ही चश्मे से मुत्तसिल हो, फिर वो कलील है, और कलील है दरमियान में निजासत खड़ी है, उससे मुत्तसिल है तो नजस हो जाएगा, तो पाक होगा, वरना नजस होगा। वरना नजस होगा का माना यह है कि कुर से कम है आगे वाला और चश्मे से भी किसी और रास्ते से मुत्तसिल नहीं है, कलील है, तो वो चूंकि ये निजासत दरमियान में आ गई, उससे मिला हुआ है तो नहीं नजस हो जाएगा। आगे चलें जी, मसला 29। एक दफा ऐसे आए का एक चश्मा है, उसका पानी जमीन से उबल रहा है, उबलते उबलते वो एक गड्ढा था, वो भरता गया भरता गया भरता गया। यही जैसे हम मस्जिद में बैठे हैं, यहाँ से एक चश्मा निकले, वो उबलते उबलते इतना जब भर गया है तो अब उबलना उसका रुक गया है, उसमें इतना प्रेशर नहीं है, अब उबलना रुक गया है, सारा यहाँ पानी खड़ा है। कितना है जी? 1000 लीटर, 2000 लीटर, 10,000 लीटर खड़ा है। तो उबलने वाला काम तो ख़त्म, न बहने वाला काम तो ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये जारी वाले काम तो जारी नहीं हो रहा। तो कुर है तो पेशाब वाले हाथ को 2 दफा धो, जारी होता तो 1 दफा धोते। अगर किसी चश्मे का पानी जारी ना हो, लेकिन सूरत हाल ये हो कि जब उसमें से पानी निकाल लें तो दोबारा उसका पानी उबल पड़ता हो। यहाँ 1000 लीटर है ना, अब ये निकालें तो नीचे से और निकालेगा, वो निकालें तो नीचे से और, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि वो बहने लग जाए, तो वो पानी जारी पानी का हुक्म नहीं रखता क्योंकि जमीन पे बह ही नहीं रहा। हमारी वो 3 शर्तें बहुत अहम हैं, बह रहा हो, कुदरती ज़ख़ीरा हो और 2.5-3 महीने बहता रहे, तो जारी पानी का हुक्म नहीं रखता। यानी अगर निजासत उससे आ मिले और उसकी मिकदार कुर से कम हो तो नजस हो जाता है, और अगर कुर हो तो रंग बुझाई का जब तब्दील होगा तो नजस होगा। समझ आ गई? कुर है तो कुर वाले अहकाम है, जो कुर से कम है तो कुर से कम वाले अहकाम है, जारी वाले तो नहीं हो सकते क्योंकि जमीन पे बह नहीं रहा। अच्छा, आगे मसला नंबर 30। अब है नहर है, दरिया है, फर्ज करो दरिया बह रहा है ना, उसके साथ कभी ऐसा होता है कभी किनारे से होता हुआ ना, इधर से एक छोटा सा रास्ता निकल रहा है, पानी इधर बहने लग गया है, इधर जाके आगे वो ठहरा हुआ है, आगे रास्ता ही नहीं है। इस थोड़े से एक गड्ढा छोटा सा, इसमें सारा नाली सी बनी हुई है, यहाँ दरिया से आता है, इसमें ठहरा हुआ है, बह नहीं रहा। ये जो बह नहीं रहा इसको जारी कहेंगे? दरिया जो बह रहा है वो तो है जारी कहेंगे। ये जो इधर आगे रुका हुआ है, आगे नहीं बह रहा, आगे रास्ता नहीं है, तो इसको तो जारी नहीं कहेंगे ना, ये बह ही नहीं रहा, ये रुका हुआ है, मुत्तसिल है। कुर बनाने वाली बात और है, जारी होगा कहा नहीं होगा, क्यों? जो बह रहा है वही जारी है, जो आगे इधर रुक गया है दरिया से मुत्तसिल है, आगे गड्ढा है, गड्ढे में पानी ठहरा हुआ है, लेकिन वो दरिया से मुत्तसिल है, तो ये गड्ढे वाले को जारी नहीं कहेंगे। कुर है तो कुर होगा, जो कुर से कम है, छोटा सा गड्ढा है, तो फिर कलील होगा। हमें चाहिए बहाव। ये वही 3 शर्तें बार बार आ रही हैं बातें, जिसने जारी को पहचान लिया है उसके लिए मसले आसान है। अगर कहाँ था, अगर एक ऐसा चश्मा ना, नहर के किनारे का पानी जो साकिन हो,
बह ना रहा हो, रुका हुआ हो, और जारी पानी से मुत्तसिल हो, जारी पानी का हुक्म नहीं रखता। ये और बात है कि वो कूर का हुक्म रखता है, क्योंकि वो इतने बहुत ज्यादा पानी से मिला हुआ है, कूर का हुक्म रखता है, जारी का हुक्म नहीं रखता। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा, रंग बुझाइके वाली बात में तो दोनों एक जैसे है ना, कूर हो या जारी हो। फर्क आता है उसमें हाँ, उसका होगा तो फर्क आता है नजस, पेशाब से नजस हाथ जो है ना, जारी में एक दफा धोया जाता है, उसमें एहतियात वाजिब है कि 2 दफा धो, तो ये फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं। अच्छा आगे देखो, अगर एक ऐसा चश्मा जो मिसाल के तौर पर सर्दियों में उबाल पड़ता हो लेकिन गर्मियों में खुश्क हो जाता हो, तो उसी वक्त जारी का हुक्म में आएगा जब उसका पानी उबाल पड़ता हो, क्योंकि हमारी शराइत पूरी है ना, जमीन से मुत्तसिल है, जमीन पे बह रहा है उबल के, और सर्दियां पूरी बहता रहेगा 2.5-3 महीने, हमारी सारी शराइत पूरियां ले रहा है, इसको हम जारी कहेंगे। अब मैं आपसे यही पूछूंगा कि जारी पानी किसे कहते हैं, आगे वाले मसले आपको आते हैं, थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या देर ना करें अक्ल इस्तेमाल, कुछ जाल पे काम करेंगे बड़ा सा जाल नहीं। ओ भाई कुछ भी नहीं होगा अक्ल इस्तेमाल करने से, और बढ़ता है, कम नहीं होगा। जोर दो थोड़ा, इधर इधर वाली तवज्जो आपकी जैसे खत्म होती जाएगी ना, आपका हाफजा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये आपका ज़हन बिखरा हुआ होता है, कभी किधर सोच रहे हैं, कभी किधर सोच रहे हैं, कभी किधर ना, जिसकी वजह से एक जगह पे ठहरता नहीं है। एक जगह ज़हन ठहरे तो आसान है, सब कुछ आसान है, इंसान के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये थोड़ी मुश्किल जो ये चीज़ है कि सलाहियत जानना, कि भाई इसकी सलाहियत किस तरफ, इसका ज़हन किस तरफ जाता है, ये जान लो, उसी तरफ ज़हन लगा दो। अच्छा आगे है, ईरान आप जाए ना, पुराने जो ईरान में हमाम है या तुर्की में पुराने हमाम है, वो इस तरह होते हैं कि आप जब उसके दरवाजे से दाखिल होंगे ना, जैसे ये हमारा दरवाज़ा है, एक छोटा सा हौज होगा पानी का, जिसमें से आप गुजरेंगे ना, वो आपके टखनों से ऊपर तक वो पानी आएगा। आप जब उससे गुजरेंगे तो आपके पाँव धुल जाएंगे, अगर पीछे से आपके पाँव नजस हैं तो उसमें धुल जाएंगे, लेकिन अगर वो कलील हो तो पाँव जैसे आपने रखा वो सारा नजस हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उसमें कोर पानी की टूटी खोल के रखते हैं, ठीक है। तो कुर से जो मुत्तसिल हो तो आप उसमें से गुजरे, रंग बुझाई का तब्दील नहीं हुआ है, आपके पाँव भी पाक और वो खुद भी पाक, समझ आई। कुर जो है, तो वही कह रहे हैं कि अगर किसी तुर्की और ईरानी तर्ज के हमाम के छोटे हौज का पानी, वो जो गुजरते वक्त रास्ते में छोटा हौज आता है, एक कुर से कम हो, वो पानी क्या है, एक कुर से कम हो, लेकिन वो ऐसे मखजन से मुत्तसिल हो, मखजन टैंकी को कहते हैं, ऐसी टैंकी से मुत्तसिल हो जिसका पानी हौज के पानी से मिलकर एक कुर बन जाता हो, ठीक है। अब जब हौज से आप गुजरेंगे तो आप कुर है ना, क्योंकि वो कुर से मुत्तसिल है, वो और ये दोनों मिलाकर कुर बन जाता है। तो अब जब तक निजासत के मिल जाने से उसका रंग बू जायका तब्दील ना हो जाए, वो नजस 33 मसला अब है कि आप के पास घर में टंकी है जिसमें 1000 लीटर है, उससे पैप निकल रहा है, आपके गुसल खाने में आ रहा है, लेटरिन में आ रहा है, बर्ची खाने में आ रहा है पैप, आप जैसे टूटी खोलेंगे तो उससे निकलने वाला पानी कूर होगा, क्योंकि ऊपर टंकी 1000 लीटर है, तो सारा मुत्तसिल है, कोई दरमियान में टूटा हुआ तो नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि पैप लगाकर, अगर प्लास्टिक वाला पैप जिससे हम छिड़काव करते हैं, ये लगाकर आप किसी चीज को पाक कर रहे हैं ना, तो पहले हवा निकलने दो जो इस पैप में है, वो हवा जब है तो उसका सिलसिला तो मुनक़ते है ना टैंकी के साथ, तो उसके बाद किसी चीज को पाक करें, फिर कुर वाले अहकाम जारी होंगे, क्योंकि एक ही धार में आ रहा होगा। हमाम और बिल्डिंग के नलकों से मुराद टूटियां, बिल्डिंग के नलों का पानी जो टूटियों और शावरों के जरिए बहता है,
बिल्डिंग के नलकों से मुराद यहाँ पैप होंगे, पैपों का पानी जो टूटियों और शावरों के जरिए बहता है, अगर उस मखजान के पानी से मिलकर, वो जो टंकी है, टंकी के पानी से मिलकर जो नलकों से मुत्तसिल हो, ऊपर से पैप आ रहा है ना, उससे मिलकर एक कूर के बराबर हो जाए तो नलकों का पानी भी कूर पानी के हुक्म में शामिल होगा। सारा फिर एक कूर है, सारा कूर है। टंकी लिहाजा ऐसी इतनी होनी चाहिए बंदे की कि जब भी हम टूटी आगे खोलें तो वो कूर ही बन के आए। जो पानी जमीन पर बह रहा हो लेकिन जमीन से उबाल ना रहा हो, टंकी भरी हुई है, उसमें 1,00,000 लीटर है, इतनी बड़ी टंकी है, उसकी हमने टूटी खोली, नीचे जमीन पे बह रहा है, ये जारी नहीं है क्योंकि इसका कुदरती जखीरा नहीं है, हमने जमा कर रखा, कूर होगा। जो पानी जमीन पर बह रहा हो लेकिन जमीन से उबल ना रहा हो, अगर वो एक कूर से कम हो और उसमें निजासत जाए, कूर से ही कम है और उसमें निजासत जाए तो वो नजस हो जाएगा क्योंकि कलील है। लेकिन अगर वो पानी ऊपर से बह रहा, अच्छा अब हमारी टंकी में था 100 लीटर, हमने टूटी खोली है, जमीन पे बह रहा है लेकिन वो कलील है, उस में निजासत गई तो वो फौरन नजस है, चाहे रंग बुझाई का तब्दील ना हो, क्योंकि आपकी टंकी में 100 लीटर है, छोटी टंकी है। अच्छा एक दफा ऐसे है कि टूटी आपने खोली, वो इतनी ऊपर थी, उसकी धार आ रही है, नीचे जमीन नजस है, जमीन पे जो धार का सरा है वो जब लगा है नजासत पे तो वो तो नजस होगा, लेकिन ये धार जो आ रही है ये नजस होगी। ये आप मसला पहले पढ़ चुके हैं, लोटे की धार नजस नहीं होती थी, ये तो 6 फुट ऊपर टूटी है, ये धार नजस नहीं होगी, समझ आई। लेकिन अगर वो पानी ऊपर से बह रहा हो, देखो अब धार आ रही है और मिसाल के तौर पर निजासत उसके निचले हिस्से को लगे, वो जो नीचे जमीन पे निजासत थी, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा नजस नहीं होगा, ये जो धार है ये भी नजस नहीं होगी और टंकी के अंदर भी जो है वो भी नजस नहीं होगा। ये सारा हुक्म उसी तरह जैसे लोटे के अंदर वाले की और लोटे की धार की बात की थी। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।